ہمارے برادر ملک یو اے ای میں برج خلیفہ کو کس روشنی کے ساتھ جی جس کے لیے ہم اپنے تلور کو مارتے ہیں، پوری پاپولیشن ختم کر رہے ہیں، پھر جھنڈا لگتا ہے تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ سعودی عربیہ سے اس نے نصرت صاحب اپنے تعلقات اچھے کیے، یو اے ای سے اس نے اپنے تعلق، یاد ہے کرکٹ اسٹیڈیم میں کتنا بڑا خطاب کیا اس نے، اس میں جو موصوف نے تقریر کی وہ کی، لیکن یہ جو سگنیفیکنس نہیں تو یہ ساری اس نے گراؤنڈ ورک ڈالی ہے، تو یہ سارا کر کے، اور دیکھو یہ کراؤن پرنس کا تعلق ہمارے وہ برڈز مارتے جاتے ہیں اور پھر بھی سے ہے، ہمارا نہیں لگاتے، it's not the question، کوئی بات نہیں، وہ ایشو نہیں ہے نا ارے مطلب اگر آپ بگ پکچر میں دیکھیں تو اتنا بڑا یعنی پروبیبلی ٹھیک ہے، نہیں تو جائے نا بھارت میں نہیں ہوتے تلور، تو وہاں جاتے ہیں، وہاں بھی مارتے ہیں، اچھا سارے ایسی بات نہیں ہے، وہ اشرافیہ کو دنیا بھر میں اس طرح کے یعنی لوگ مواقع دیتے ہیں، لیکن یہ جو الائنس، یہ جو بڑھتے ہوئے تعلقات ہیں، ابو دھابی جو ہے وہ آئل پروڈیوسنگ ہے، دبئی بیسیکلی ٹریڈنگ ہب ہے، یہ کراؤن پرنس وہاں کے ہیں، اچھا اب ان کا وہاں جانا اور ایک دوسرے کے ساتھ اسٹریٹجک تعلقات بنانا، اور یہ اٹس ویری ریئر کہ آپ ایک سربراہ کو تو اپنی یوم جمہوریہ کی پریڈ کے اپنے ساتھ تو بٹھا سکتے ہیں، کھڑا کر سکتے ہیں، بٹ یہ کراؤن پرنس یعنی یہ آئندہ آنے والی نسلوں پر تو آگے کی سوچ ہے نا، اور اس میں بھی فوکس زیادہ ہو گیا ابو دھابی، آئل اینڈ حکومت، کیونکہ ٹیکنیکلی تو یعنی صدر مقام تو وہاں ہے نا، بالکل، اور یہ بات یاد رہے کہ امریکہ جو بھی افغانستان میں جو رول ادا کرتا ہے، جو القاعدہ کے ساتھ جنگ ہے، جو آئیسس وغیرہ ہے، اس میں انٹیلیجنس گیدرنگ، کنیکشن بلڈنگ، فلاں میں بڑا کی رول یو اے ای کی، ایکسکیوز می، ٹھیک، وہ ابھی بھی جو ریسنٹلی وہاں ہوا تھا، بالکل، آپ کو اگر امریکہ جانا ہو تو آپ اگر ابو دھابی سے فلائٹ جی تو آپ کی امیگریشن وہیں ہوتی ہے، تو آپ کی امیگریشن وہیں ہو جاتی ہے، اور ایئرپورٹ پہ لکھا ہوتا ہے ویلکم ٹو امریکہ، جی آپ پھر اترتے ہیں، اپنا بیگ اتارتے ہیں اور امریکہ میں ایئرپورٹ سے باہر جاتے ہیں۔ اب اس کے مقابلے میں ہم لوگ یہی کہیں گے کہ گل ہی کوئی نہیں، کیونکہ چین اپنا یار ہے اور سی پیک ہے اور روس ہے، تو وہ گڈ سٹوریز اپنی جگہ، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو نئے الائنسز بننے جا رہے ہیں، دیکھنا چاہیے کم از کم، ہمیں انہیں غور سے دیکھنا چاہیے۔ چلیں آج کا وقت بھی ہمارا ختم۔ ایک نیا تجارتی معاہدہ جو بھارت عرب امارات میں اسٹریٹجک پارٹنرشپ، دفاع سمیت 75 ارب ڈالر کے 14 معاہدے 3 برس کے دوران تجارتی حجم 7% تک بڑھانے پر اتفاق، کیا کہتے ہیں اس معاہدے کے حوالے سے پاکستان اور پاکستان کی خارجہ پالیسی؟ میں سمجھتا ہوں کہ to be very honest آج اور کل کا دن at least I was very upset because for the first time I came to know کہ آج 26 جنوری ہے، 26 جنوری کو جو ہمارے کشمیری بھائی ہیں وہ بلیک ڈے منا رہے ہیں کشمیر کے اندر، کیونکہ پچھلے 7 مہینے آلموسٹ ہو گئے ہیں انہوں نے کشمیر کا ناطقہ بند کر کے رکھ دیا ہے، بالکل ایسے ہی، 7.5 لاکھ فوج ہے، پولیس ہے، اور جس طرح کی چیرہ دستیاں، جس طرح کی سختیاں، جس طرح کا ریاستی تشدد ہے، واقعی کسی سے کوئی چھپا ہوا نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایون جتنے بھی ہمارے میڈیا ہاؤسز ہیں، آپ کے چینل نے اور ایون نوائے وقت نے، میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا رول پلے کیا ہے کشمیر کے لیے، کشمیر کاز کے لیے اور ہمارے کشمیری بھائیوں کے لیے۔ آلرائٹ، سو واٹ ہیپن کہ انہوں نے کہا جی کہ ایک پہلا عرب ملک ہے جس کا ملٹری کنٹیجنٹ یو اے ای کا وہ آج اس پریڈ کا حصہ بن رہا ہے جو کہ آج 26 جنوری کو ہو رہی ہے۔ اوکے گڈ انف۔ ایوننگ میں دین آئی کیم ٹو نو کہ جو برج الخلیفہ ہے وہ ان کا جو ترنگا جھنڈا ہے انڈیا کا، وہ اٹ واز ہیونگ دیٹ کلر۔ یہ 2 چیزیں ہو گئیں، اینڈ دین ان دی مارننگ آئی کیم ٹو نو کہ $75 بلین کا ایگریمنٹ جو ہے وہ یو اے ای کے اندر اور انڈیا کے اندر ہونے جا رہا ہے، اور وہ اس کو انکریز کر رہے ہیں، انکریز کرنے پہ ہے ایگری کیا انہوں نے کہ 7% کے اوپر۔ گڈ انف، فائن، آئی انڈرسٹینڈ کہ یہ ہے 2 ممالک کا ایگریمنٹ، بالکل ان کو چلنا چاہیے۔ مجھے ایک یہ بتائیں ویئر پاکستان سٹینڈز، آج ہماری فورن آفس کو، ہمارے فورن جو 2 لوگ ہیں، طارق فاطمی ہیں اور سرتاج عزیز ہے، اور ایون آف دیٹ میٹر پرائم منسٹر جس نے کہ فارن منسٹر کا بھی عہدہ سنبھالا ہوا ہے، کیا ان کے آج شرم سے ڈوب مرنے کا مقام نہیں ہے کہ بینگ این اسلامک کنٹری کہاں پہ ہماری فارن پالیسی سٹینڈ کرتی ہے، کہاں پہ ہمارا فارن آفس کام کرتا ہے؟ ہم انڈیا کس لیول کے اوپر پاکستان کو، مطلب پاکستان کے اندر اگر دیکھا جائے تو انڈیا نے تو اینٹ سے اینٹ بجائی ہے، ہر طریقے سے کہی ہے
बिल्कुल ठीक है। कलभूषण यादव को ले लें, बलूचिस्तान को ले लें, बलूचिस्तान में लादगी पसंदों को फंड करना, ट्रेन करना, ऑपरेशन उनके कराना, कराची के अंदर देख लें जो कुछ हो, हर चीज सामने आई है आपके, इंडियन एम्बेसी इसके अंदर इन्वॉल्व है आपकी, बिल्कुल ठीक है, वो आप देख लें, LOC वर्किंग बाउंड्री के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक आप ले लीजिए, इसी के साथ आप कश्मीरियों के साथ जो कुछ हो रहा है, और एक इस्लामी मुल्क है वो उनके साथ $75 बिलियन का ये ICA के एग्रीमेंट करने जा रहा है। और मोदी जब गया सऊदी अरब के अंदर तो वहां पे उन्होंने कहा जी कि सबसे आला तरीन सिविल एजाज जो है वो आपने मोदी को दिया। अब व्हाट रोल सो फार इंडिया हैज प्लेड फॉर द बेटरमेंट ऑफ ओके जी मिडिल ईस्ट के सारे ममालिक की तरफ उन्होंने किया। मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए बहुत ही सीरियस लम्हा इस वक्त सोचने का कि हम किधर जा रहे हैं, पाकिस्तान किधर जा रहे हैं, इस्लामी ममालिक किधर जा रहे हैं। आप ये वो लोग हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमें लिहाज करने की कोई जरूरत नहीं है। और ऐसे मैं तो ये आज ये अल्फाज भी इस्तेमाल करूंगा कि ऐसे बेशरम लोग इस मुल्क को हुक्मरानी कर रहे हैं कि उन अरबियों को कहा कि आप आए और हमारे मुल्क के अंदर शिकार करें, और अगर आप शिकार आप उनको नहीं कराने की इजाजत देते तो आपके उनके साथ ताल्लुकात खराब हो जाएंगे। इज इंडिया डूइंग ऑल दीज थिंग्स? टू बी वेरी ऑनेस्ट, इंडिया के अंदर तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसी के साथ मैं एक और चीज लिंक करके बोलूंगा। कल आप ही के प्रोग्राम में डिस्कशन के अंदर में एक चीज लेकर आए थे जिसमें कहा गया था कि इंडियन फिल्मों को पाकिस्तान के अंदर चलने की इजाजत दी जाए, और हुकूमत ने एक खुसूसी कमेटी जो है वो तश्कील दी थी। बिल्कुल ठीक है। कल की जो लेटेस्ट न्यूज ये थी कि उस खुसूसी कमेटी ने रिकमेंडेशंस दी हैं प्राइम मिनिस्टर को कि हाँ हालात इस तरह के हैं तो इंडियन फिल्मों को इस मुल्क के अंदर चलाने की इजाजत दी जाए। मैं लेट मी आस्क वन क्वेश्चन, आई एम नॉट दैट वे नेगेटिव, मैं ये कहूँ कि नहीं दो ममालिक के अंदर हमारे ये सकाफती रिश्ते नहीं होने चाहिए, बट क्या इन सकाफती रिश्तों को कायम रखना सिर्फ पाकिस्तान की जिम्मेदारी आती है? सही। क्या आपके फनकार वहाँ जाके काम कर सकते हैं? आर दे सिक्योर? क्या पाकिस्तानी फिल्में इंडिया के अंदर चल सकती हैं? क्या जिस तरीके से हिंदू शिद्दत पसंदी के साथ ये काम कर रहे हैं, क्या ये सारा कुछ वो ठीक चल रहा है? क्या मुसलमानों के ऊपर वहाँ सख्ती नहीं हो रही, कश्मीरियों के ऊपर सख्ती नहीं हो रही? क्या इंडिया वाले जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर तमाम दहशतगर्दी तकरीबकारी की कार्रवाइयाँ नहीं कर रहे? और अब तक वो इस सारी चीज़ के अंदर हैं। अभी पिछले वीक की बात है कि आपने इतना बड़ा नेटवर्क गिलगित बल्तिस्तान के अंदर पकड़ा है जो कि फंड कर रहा था, 30 करोड़ रुपए की फंडिंग अभी तक हो चुकी थी जो कि रॉ ने की थी उनको। रॉ और जो NDS का नेक्सस है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। इसके बाद वर्किंग बाउंड्री LOC के ऊपर देख लें, निहत्ते हमारे पाकिस्तानियों के ऊपर, स्टूडेंट्स के ऊपर, बसों के ऊपर वो शेलिंग करते हैं, हमारे लोगों को शहीद करते हैं, हमारे फौजियों को शहीद करते हैं। एंड इज अ मैटर ऑफ शेम फॉर अस। और हम कहें कि हमारे अंदर इंडिया की फिल्में चलनी चाहिए। आई वुड सिंपली से कि हुकूमत को बहुत सोच समझ के इन सारे इकदाम को करना चाहिए। बिल्कुल ठीक हो ठीक गया। है। इस खित्ते की सिक्योरिटी सिचुएशन के अलावा डिप्लोमेटिक सिचुएशन का क्या होगा? भारत का आज यौम जमहूरियत है और इसमें अरब अमारात के शहजादे आ रहे हैं, यानी UAE, जिनके साथ हमारे ताल्लुकात बड़े अच्छे मुस्लिम ब्रदरहुड या मुस्लिम ममालिक के हवाले से अच्छे ताल्लुकात माने जाते हैं। ऐसे में अरब के शहजादे, वैसे तो हमारे यहाँ तो कतर के शहजादे आ रहे हैं, वो किसी और पर्पस से आ रहे हैं, और UAE के शहजादे भी यहाँ शिकार विकार करने आते हैं, सऊदी अरब के शहजादे आते हैं, वहां जा रहे हैं। क्या अनिका देखिए, ये वो हमेशा अपने प्रोग्राम में हम ये जिसका मैं जिक्र करता हूँ कि जब इंटरनेशनल रिलेशन है ना, वहां पे आपके नेशनल इंटरेस्ट मैटर करते हैं। अब UAE के शहजाद वली अहद वहां पे गए, मोहम्मद जाहिद अल नहयान साहब, उनको मोदी साहब ने देखा, आप तस्वीर देखें, वो उन्होंने प्रोटोकॉल को वायोलेट करके वो उस पे टामक पे चले गए, उनको जहाज से उतर दी, उनके उन्होंने बड़ी वो पंजाबी का ना कोट के जफ्फी डाली और उनके साथ UAE में जाके मस्जिदों में सेल्फियां भी बनाते रहते हैं, बड़े अच्छे और वो उनको बुलाया, वो वहां पे आए हैं और आज उनके वो चीफ गेस्ट होंगे। और मैं 2012 के अंदर मुझे मौका मिला, मैम वो ये जो इनका जो इंडिपेंडेंस डे मैंने किया हुआ है, तो बहुत ग्रैंडेड किस्म का वहां पे फंक्शन होता है, ये चीफ गेस्ट है वहां पे। सवाल रेज करने की जरूरत है ना, हम क्या करते हैं, हम हमेशा जो है हमारे मुस्लिम उम्मा की वो जब सऊदी अरेबिया से हमें कॉल आती है पाकिस्तान भाग पड़ता है, हमें UAE से कॉल आती है हम भाग पड़ते हैं, हमें ईरान से कॉल आती है हम भाग पड़ते हैं, अपने मुल्क के मफाद को साइड पे रख लेते हैं। लेकिन जब अब इधर देखें, अब UAE को थोड़ा सा एहसास करना चाहिए था, उधर कश्मीर के अंदर जिस तरह जुल्म और बर्बरियत ढाई जा रही है, वहां पे रोजाना की तादाद पर लोगों बच्चों को अंधा किया जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, और एक सियासी रियासती दहशत गर्दी जो वहां पे हो रही है, तो ये थोड़ा सा मेरे ख्याल में UAE के शहजादा साहब है, उनको थोड़ा एहसास करना चाहिए, वहां पे मुसलमान मर रहे हैं, लिहाजा किसी और मौके पे आ जाते हैं, हम उनको रोक रहे नहीं रहे, वो एज ए
सॉवरन कंट्री, उनका ये राइट है, वो जा सकते हैं और वो उनकी मर्जी है जाए या ना जाए, लेकिन थोड़ा सा एहसास करना चाहिए कि इस खिते के अंदर जो इस टाइम जो एक क्लैश पॉइंट बना हुआ है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, वो कश्मीर है, और कश्मीर में आज यौम सियाह मनाया जा रहा है। आज ये और मसला ये है कि जब हमारी इस्लामिक ब्रदरहुड की बात आती है तो हम लोगों को बड़ी खलीजें नजर आती हैं, यहाँ हम लोगों को नजर आता है गैप्स है आपस में। OIC को देख ले, वो कुछ नहीं करता, कश्मीर के मामले पे और फलस्तीन के मामले पे कोई खातिर ख्वाह चीज हम लोगों को नजर नहीं आती। दूसरी तरफ तमाम दुनिया मुसलमानों के खिलाफ होती हुई नजर आती है। अभी डोनाल्ड ट्रंप ने भी 7 ममालिक के वीजा के जो सस्पेंशन की बात की, इसके अंदर से अभी 6 का नाम नहीं आया, एक अफगानिस्तान का नाम गर्दिश कर रहा है। अगर हम इत्तेहाद नहीं हमारा होगा, मुत्तहिद नहीं हो पाएंगे, हम लोग फिरका वारियत में या जनरल तनाज़ात में पड़े रहेंगे, तो कैसे दुनिया के अंदर अपना कोई झंडा गाड़ सकेंगे सुहेल साहब? फिर तो इसी तरह रहेगा मामला। निका, उसकी जो ट्रंप की बात की, उसकी बुनियादी वजह यही है मुस्लिम उम्मत के अंदर जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, जिसका आज अमली तौर पर मुजाहरा करने जा रहे हैं अबू धाबी के जो शहजादे हैं भारत जाकर, जब कश्मीरियों के अंदर कश्मीर में इतने जुल्म हो रहे हैं, जुल्म बर्बरियत की नई दास्तानें उन्होंने वहां पर रकम की हैं, तो यही वो अप्रोच है जिसकी वजह से 7 ममालिक के ऊपर पाबंदी लगने जा रही है और दुनिया भर के अंदर मुस्लिम ममालिक को मुश्किलात का सामने। सिर्फ यही नहीं, शेख शहजादे जो हैं वो न सिर्फ वहां जाके यौम जमहूरियत तकरीब में शिरकत करने जा रहे हैं, बल्कि आप सुनकर हैरान होंगे जो अनाउंसमेंट हुई है उनकी जानिब से भारत के अंदर 62 अरब डॉलर से जायद सरमायाकारी करने का भी ऐलान किया गया है। और ये सरमायाकारी होगी, कर्जे ये कर्ज नहीं है, जो सीपैक इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, पूरी दुनिया उसके ऊपर उसकी लोग बात करते हैं, कंसर्न लोगों के लिए बना हुआ है, कितनी बड़ी रेवोल्यूशन है, हमें भी हुकूमत इतना बड़ा क्लेम करती है, वो कर्ज है और वो 40 बिलियन डॉलर है। और उसके साथ जो चाइना के मुकाबले में एक बहुत कम छोटा मुल्क है, छोटी मौशियत है, वो 62 अरब डॉलर की सरमायाकारी करके मुस्लिम दुनिया कश्मीरियों को और पाकिस्तान को क्या पैगाम देने जा रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, कतर जिसके साथ हमारे इतने गहरी मरासिम है, हमारे हुक्मरानों के इतने तारीखी, उन्होंने भी वो स्टेटस जो भारत को दे रखे वो पाकिस्तान को नहीं है। भारत के जो आइंदा वर्ल्ड कप होने कतर के अंदर, उसका बड़ा ठेका जो काम करने का है इंडियंस को दिया गया है, इंडियन कंपनीज को। इंडिया को ये स्टेटस दिया गया है कि इंडियन के सरकारी अफसरान किसी भी वक्त कतर जाना चाहें वो डायरेक्ट जाएंगे, एयरपोर्ट पे लैंड करेंगे, उनको उसी वक्त ऑन द स्पॉट उनका वीजा लगेगा और वो जाके अपना काम करेंगे। पाकिस्तानियों के लिए कतर जाना किस कदर मुश्किल है, कोई अंदाजा नहीं लगा सकते। घुमन साहब ने शुरू में बहुत अच्छी बात की, नेशनल इंटरेस्ट, यहां पे जब इंडिविजुअल इंटरेस्ट के ऊपर काम होगा ना, तो फिर यही चैलेंजेस और इन्हीं तबाही का हमें सामना करना पड़ेगा। नेशनल इंटरेस्ट जब सामने नहीं होते तो फिर इसी किस्म की जो उसके अंदर अदम तवाज़ुन पैदा होता है और अल्टीमेटली तमाम मुमालिक उससे सफर करते हैं और पाकिस्तान खसूसी इस नतीजे में सफर करता है। प्रॉब्लम है इसके, हमारी डिप्लोमेसी और उनकी डिप्लोमेसी में बड़ा फर्क है। हमारी डिप्लोमेसी पर्सनल डिप्लोमेसी होती है, यानी अगर हमारे किसी लीडर को मसला हो, वो सऊदी अरब चला जाए, उनको जगह मिलती है, चाहे वो मुशर्रफ साहब हो या नवाज शरीफ साहब हो। हमारे किसी लीडर को पर्सनल मसला हो, अमेरिका के अंदर 10 लोग खड़े होते हैं उनके मसले हल करने के लिए। जरदारी साहब को देख लीजिए, जॉन मकेन के साथ कितने अच्छे ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान का मुल्क का मसला होता है तब हमें कोई नहीं नजर आता। क्यों? अगर अपने जाती मफादात के लिए इतने अच्छे ताल्लुकात हो सकते हैं तो मुल्क के लिए क्यों नहीं? देखें, बार बार हम इस इशू को हाईलाइट कर चुके हैं। आपका फुल फ्लेज फॉरेन मिनिस्टर नहीं है, फॉरेन पॉलिसी आप प्राइम मिनिस्टर साहब अपनी मर्जी से रन करना चाहते हैं। आपने डिसाइड किया कि आपने मोदी की इनॉग्रेशन सेरेमनी पे जाना है, आप गए, आपने डिसाइड कर लिया मोदी को आपने अपनी पोती की शादी पे बुलाना है, आपने बुला लिया, सबके सामने आपने देखा जाती ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। इस तरह कतर से आपको खत चाहिए, पनामा के इशू पे एक खत आ गया, सुहेल ने कहा है कि एक और भी खत आने वाला हो सकता है, आज वो एक और भी खत वहां पे पेश हो जाए कि ये देखें, ये वो दलाइल हैं, ये वो शवाहिद हैं जिसकी बेस पे हमने लंदन में फ्लैट दिए। इशू वहीं पे आ जाता है कि जो नेशनल इंटरेस्ट है वो आपका प्राइम होना चाहिए। नेशनल इंटरेस्ट पे आपका कोई, अब पूरी दुनिया के अंदर ये तो एक कहते हैं एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल है, आज से नहीं सदियों से आ रहा है कि जब आपके नेशनल इंटरेस्ट है वहां पे आपका पर्सनल इंटरेस्ट बिल्कुल साइड लाइन हो जाना चाहिए। एक जो डोनाल्ड ट्रंप की बात की, अभी जो इंटरनेशनल मीडिया में जो बाकी ममालिक की उसको लिस्ट में, उसमें शाम है, इराक है,